A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th economics. So in previous classes we were continuously studying the chapter 7 of your macroeconomics, that is aggregate demand, aggregate supply and the related concepts. So in previous class we have completed the propensity to consume, in which we have discussed the APC and the MPC along with their table, their schedule and the diagram also. So in today's class we are going to start the saving function. We have already discussed the consumption function. So C equal to the function of Y. So consumption is totally depend upon the income. When the income increases, consumption also increases, but not more than the income. Now the next one is saving function. Saving function, it is also the positive function between the saving and the income. So when income increases, saving also increases. So it is your S equal to the function of Y. Saving is the function of income. If income increases, saving also increases. So we have discussed already that Y equal to C plus S, income equal to consumption plus saving. So whenever we have to calculate the saving, so income minus consumption, so that we get the value of saving. So S equal to Y minus C. ये हम लोग ने आज पढ़ना है हमें कि क्या होता है कि सेविंग का क्या फंक्शन है. सेविंग और इनकम में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है. पॉजिटिव रिलेशन मीन्स कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आपका सेविंग भी इंक्रीज होगा इन द वाइस वर्सा. नेक्स्ट क्या कह रही हूँ मैं, ये कह रही हूँ कि इनकम हम लोगों ने पढ़ा ना एग्रीगेट सप्लाई. इसमें क्या देखा, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम and income equal to the C plus S, consumption plus saving. So whenever we have to calculate the saving, so we have to subtract the consumption from the income. Income से हम consumption क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, saving मिल जाएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. So saving function refers to the relation between the saving and income. वही जो अभी मैंने बोला कि जो saving function होता है वो relation होता है किसके बीच में, saving और income के बीच में, S and Y. So S equal to function of Y. S क्या है, वो income का function है. So saving is the excess of income over and above consumption during an accounting year. Saving क्या होता है, excess of income over the consumption. कि आपकी अगर income क्या है, income और consumption का अगर हम लोग subtract करते हैं, income और consumption, so that हम क्या करते हैं, saving करते हैं. अगर आपकी इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो कुछ पार्ट आप क्या करोगे, उसको कंज्यूम करोगे और जो लेफ्ट आउट हो गया वो आप क्या करोगे, सेव कर लोगे. ठीक है. सो एस इक्वल टू इनकम माइनस कंजप्शन, एस इक्वल टू वाई माइनस सी. सो द नाउ प्रोपेंसिटी टू सेव. अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ा, जिसमें हम ये देख रहे थे कि इसमें शेड्यूल में हम क्या प्रेजेंट करते हैं कि इनकम और कंजप्शन के बीच में रिलेशन, की जब whenever the income changes, what will impact on the change in the consumption. Consumption पे क्या change होगा. Now the propensity to save. So it refers to the schedule. इसमें schedule होता है which shows different level of savings. जो क्या show करता है, different level of saving को show कर रहा है at the different level of income in an economy. कि किसी भी economy में different level of income पे कोई भी डिफरेंट जो पर्सन्स हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं जो आपकी इकॉनमी में हैं, जितने भी इकॉनमी में, वो कितनी सप्लाई कर रहे हैं जब उनकी इनकम, गिवन इनकम दी हुई है. ठीक है. सो द फॉलोइंग टेबल इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन. जो टेबल है वो इस अजम्पशन पे बेस्ड है. C इक्वल टू 50 प्लस 0.55, वही सेम टेबल है. टेबल में कोई भी चेंज नहीं है. ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग बार बार टेबल को देखना पड़ेगा. वही सेम टेबल हर बार दिया है. आपका इनकम क्या है, 0, 50, 100, 200, 300, 400, 500. कंजप्शन आपका क्या है, 50, 75, 100, 150, 200, 250 और 300. ठीक है. ओके. अब सेविंग कैसे निकालते हैं, सेविंग इक्वल टू वाई माइनस सी, 0 माइनस 50. ठीक है. माइनस 50 आपका हो गया, 50 माइनस 75 माइनस 25, 100 माइनस 100 0, 250 minus 150, 50, 300, 200, 100, 400, 250, 150, 500, 300, 500 minus 300 कितना हो गया आपका, 200. So that we get the values of the saving. ठीक. अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका नेक्स्ट है कि
डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करना है। इसमें आपका कोई नया चीज़ तो मैंने बताया नहीं, ये सब आप लोग को ऑलरेडी नो है क्योंकि आप लोग भी पहले ये पढ़ भी चुके हो लास्ट क्लासेस में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनकम और कंजप्शन का ये शेड्यूल दिया हुआ है और हमें सेविंग क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब आपके पास सेविंग दिया हो, इनकम दिया हो, आप कंजप्शन भी कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल है। तो अगर आपके पास इनकम दिया है, कंजप्शन दिया है, तो आप सेविंग क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्या है, आपका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है जिसमें दो डायग्राम है, साथ में ही दो डायग्राम है, एक कंजप्शन का डायग्राम है और एक सेविंग का डायग्राम है। दोनों डायग्राम साथ में दे रखा है जिसमें हम लोग साथ ही साथ क्या पढ़ेंगे, साथ ही साथ देख के ही पढ़ेंगे, ठीक है। सेम चीज है आपका, यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, इनकम लिया है, वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, कंजप्शन। इस वाले डायग्राम में एक्स एक्सिस पे लिया है इनकम और वाई एक्सिस पे लिया है सेविंग। अब जो ये वैल्यूज है, ये जो वैल्यूज है आपके पास, आप पहले कंजप्शन की वैल्यूज को प्लॉट करिए 50, 75, और ये तो आप जैसे वैल्यू प्लॉट करेंगे आप लोग डिफरेंट इनकम पे, इनकम लेवल फाइंड आउट करिए, इनकम की जो डायग्राम है वो बनाइए, फिर कंजप्शन का फाइंड आउट करिए, उस पर डायग्राम पे प्लॉट करिए। और आपका कंजप्शन कभी भी 0 पे स्टार्ट नहीं होगा, तो कंजप्शन आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सीसी कर्व। अब ये जो गैप है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ऑटोनॉमस कंजप्शन, हमें पता है कि कंजप्शन फंक्शन का होता है सी बार प्लस बी वाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, यही ऑटोनॉमस कंजप्शन हो गया, ठीक है। अब क्या है, इस डायग्राम में देखिए इक्विलिब्रियम ई पॉइंट कहाँ पे फाइंड आउट हो रहा है, ई पॉइंट फाइंड आउट हो रहा है आपका जब आपकी इनकम किसके इक्वल है, कंजप्शन के इक्वल है, ठीक है। इनकम y इक्वल टू सी, आपको ये मैंने बता चुका है कि जब इनकम कंजप्शन के इक्वल होगा तो उस कंडीशन पे आपकी सेविंग क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जितना आप इनकम अर्न कर रहे हो वो आप पूरा ही पूरा क्या कर ले रहे हो, कंज्यूम कर ले रहे हो, तो आप सेविंग कुछ भी नहीं कर पाओगे। इस कंडीशन पे सेविंग क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। आप ये जब ये डायग्राम बनाओगे तो ये 100 पे इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि इस 100 पे और इस 100 पे ये इंटरसेक्ट किया। अब फिर इसी से हम लोग साथ में क्या करेंगे, सेविंग की भी लाइन बनाएंगे कि सेविंग क्या है, 0। अब ये जो पॉइंट है, अब एक्स एक्सिस पे क्या ये 0 आएगा, इसी के साथ हमें क्या करना है, जो सेविंग का ये कर्व है उसको भी बनाना है। तो सेविंग आपका पहला क्या है, -50, तो अब ये क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, नीचे से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से ये स्टार्ट होते होते पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि सेविंग क्या होती है, सबसे पहले सेविंग आपकी निगेटिव होती है, डिस सेविंग होती है। क्यों कंडीशन में, जब आपका कंजप्शन इनकम से ज्यादा होता है, उस कंडीशन पे आपकी सेविंग क्या हो जाती है, डिस सेविंग होती है, क्योंकि हम लोग पहले की जो सेविंग किए होते हैं उसी को ही विथड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट आपका सेविंग क्या है, जब कंजप्शन इनकम के इक्वल हो जाएगी तो सेविंग क्या है, इस पे हो जाएगी। इस पे होने का मतलब है एक्स एक्सिस पे हो गया, और यही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि एस इक्वल टू 0 हो जाएगा, यही आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। अब ये लाइन आप क्या कर दोगे, मर्ज कर दोगे, तो आपको क्या पता चल जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे आपका इनकम कंजप्शन के इक्वल है, सी इक्वल टू वाई एंड एस इक्वल टू 0, सेविंग आपका 0 के इक्वल है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये जो रेड लाइन में शो कर रहा है, ये जो रेड है वो क्या शो कर रहा है कि बिफोर पॉइंट ई पॉइंट के पहले लेफ्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, कंजप्शन कर्व इज अबव देन द इनकम कर्व, कंजप्शन का कर्व इनकम के से ऊपर है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कंजप्शन इज मोर देन द इनकम ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में लोग क्या कर रहे हैं, कंजप्शन ज्यादा कर रहे हैं और इनकम कम हो रही है। अब यही चीज आप इसमें देखेंगे, इनकम 0, कंजप्शन 50, इनकम 50, कंजप्शन 75, ये ज्यादा हो रहा है इन दोनों कंडीशन पे। यहीं पे आपका क्या हो रहा है, सी इज ग्रेटर देन, इसी दोनों कंडीशन पे आपका क्या हो रहा है, सी इज ग्रेटर देन वाई, और यहाँ पे आपकी इनकम सेविंग क्या है, आपकी डिस सेविंग हो रही है। डिस सेविंग मतलब आपकी सेविंग क्या है, निगेटिव है, और यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या होगा, नीचे जाएगा। ये जो रेड पॉइंट है वो यही शो कर रहा है कि आपका क्या है, इकोनॉमी में क्या हो रही है, डिस सेविंग हो रही है, कोई भी सेव नहीं कर रहा है, जो पहले की सेविंग की है उसी को लोग विथड्रॉ कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए, यहाँ पे माइनस निगेटिव हो गया। इस पॉइंट पे देखिए
यहाँ पे क्या हो गया, कंजप्शन इनकम के इक्वल हो गया, तो यहाँ सेविंग आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब ये पॉइंट हम कहाँ पे देख रहे हैं, जहाँ पे इनकम कर्व कंजप्शन कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है एट दी 100 एट 100, और सेविंग आपका 0 है। आप यहाँ पे सेविंग का जो कर्व बनाओगे तो ये एक्स एक्सिस पे यहाँ पे टच करेगा, यही लाइन हम ड्रॉ कर देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो पूरी कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या हो रहा है आपका, सेविंग इज लेस देन द इनकम, सेविंग सॉरी कंजप्शन इज लेस देन द इनकम। कंजप्शन क्या है, लेस है, इनकम ज्यादा है। जब आपकी इनकम ज्यादा हो गई विच मीन्स सेविंग आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी, सेविंग आपकी क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक, अब इस पॉइंट को जैसे ही हम लोग इक्विलिब्रियम की पॉइंट पे आए, अब आपका देखिए इनकम ज्यादा हो गया, जो कर्व है वो इनकम वाला ऊपर जा रहा है और कंजप्शन वाला नीचे जा रहा है। ये क्या शो कर रहा है कि इनकम इज मोर देन दी कंजप्शन, y इज ग्रेटर देन c, और यही पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो ग्रीन पॉइंट है वो क्या शो कर रहा है कि s अब आपका क्या हो गया है, पॉजिटिव हो गया, क्योंकि आपकी इनकम क्या है, ये इतनी इंक्रीज हो रही है। अब जो ये इंक्रीज हो रहा है उतना ही आप क्या करने लोगे, या सेविंग करने लोगे। यही आपका पूरा सेविंग फंक्शन। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्योंकि यही क्या करना है, जो टेबल है वो आप लोग पहले प्लॉट करो। जो ई पॉइंट से ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है और ये E1 क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है एस सेविंग के पर्सपेक्टिव में। तो यहाँ इसके पहले जब भी लेफ्ट में बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कंजप्शन ज्यादा हो रहा है देन दी इनकम, तो इसलिए सेविंग क्या होगी, वो निगेटिव होगी। फिर जैसे ही हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आए, ई पे, जहाँ पे इनकम कर्व कंजप्शन कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, वहां पे आपकी सेविंग क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बट आफ्टर दैट इनकम का कर्व आपका ऊपर चला गया और कंजप्शन नीचे चला गया, तो इनकम इज मोर देन दी कंजप्शन, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सेविंग हमारी इंक्रीज होती चली जाएगी, सेविंग अब पॉजिटिव होती जाएगी। ठीक है, क्या कह रहा है इसका ऑब्जर्वेशन देखिए, ऑरिजिन ऑफ द सेविंग कर्व। सो सेविंग स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट एस ऑन द वाई एक्सिस। जो भी सेविंग है, सेविंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, सेविंग स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट एस ऑन द वाई एक्सिस। सेविंग यहां से स्टार्ट हो रही है, वाई एक्सिस के एस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, दिस इज द एस। आपको बोर्ड पे छोटा दिख रहा होगा, ये एस पॉइंट है, ये वाला, ये जो ये पॉइंट है वाई एक्सिस के एस पॉइंट से जो सेविंग कर्व है वो स्टार्ट हो रहा है। सो इट इंडिकेट्स दैट देयर आर नेगेटिव सेविंग व्हेन इनकम इज 0। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि आपकी सेविंग अभी क्या है, ये रेड वाला क्या है, देखिए डेंजर जोन है, रेड वाला क्या शो कर रहा है कि आपकी सेविंग क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि इनकम आपकी जो भी है, हम लोग इनकम भी आपकी 0 है और 50, क्योंकि इनकम ही हम पूरा क्या कर ले रहे हैं, जो भी इनकम हमारी हो रही है वो हम पूरा का पूरा कंज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है, स्लोप। सो सेविंग कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप। इसके बाद क्या है, सेविंग कर्व का पॉजिटिव स्लोप हो गया। सेविंग कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप। सेविंग कर्व का पॉजिटिव स्लोप इसलिए होता है क्योंकि जो भी इनकम और सेविंग के बीच में जो रिलेशन होता है वो पॉजिटिव होता है, कि इनकम इंक्रीज होगी तो सेविंग भी इंक्रीज होगी। सो हैज अ पॉजिटिव स्लोप विच मीन्स द सेविंग एंड इनकम मूव इन सेम डायरेक्शन, क्योंकि जो इनकम कर्व है और जो आपका सेविंग कर्व है दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ये नहीं है कि इनकम ऐसे जा रहा है तो सेविंग डाउनवर्ड जा रहा है, नहीं। अगर कोई चीज दो, जैसे हम लोग डिमांड और सप्लाई का देखते हैं, एक पॉजिटिव रिलेशन है सप्लाई का प्राइस के साथ और डिमांड का निगेटिव रिलेशन, तो एक क्या है डाउनवर्ड जाता है, डिमांड डाउनवर्ड जाता है तो सप्लाई अपवर्ड जाता है, उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होता है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सेविंग और इनकम में पॉजिटिव रिलेशन है, इसलिए पॉजिटिव रिलेशन है क्योंकि दोनों कर्व क्या है वो सेम डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। ठीक, विथ इंक्रीज इन इनकम सेविंग इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा, कि इनकम के इंक्रीज होने के साथ सेविंग भी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, सो व्हेन सेविंग आर 0, जब सेविंग 0 होगी, सो सेविंग आर 0 एट अ पॉइंट व्हेन कंजप्शन इज इक्वल टू द इनकम। सेविंग उस कंडीशन पे 0 होगी, उस पॉइंट पे 0 होगी जब आपका कंजप्शन आपका इनकम के इक्वल हो जाएगा, C इक्वल टू 1। अब ये दोनों पॉइंट एक दूसरे पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, विच मीन्स कंजप्शन क्या है आपका इनकम के इक्वल है और सेविंग आपकी 0 है। सो दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। इसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन
पॉइंट बोलेंगे। नेक्स्ट है व्हेन सेविंग्स आर नेगेटिव, जब आपकी सेविंग क्या होगी, नेगेटिव होगी। सेविंग आर नेगेटिव टू द लेफ्ट ऑफ द ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट के लेफ्ट में जो ये रेड है, ये डेंजर जोन है, ये क्या है, यहाँ पे आपकी सेविंग क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि कंजप्शन इज मोर देन द इनकम। कंजप्शन क्या कर रहे हैं हम लोग, ज्यादा कर रहे हैं एज कंपेरिजन टू इनकम। नेक्स्ट है व्हेन सेविंग्स आर पॉजिटिव, कब सेविंग क्या है, पॉजिटिव होगी। सेविंग आर पॉजिटिव टू द राइट ऑफ द ब्रेक इवन पॉइंट, जो ब्रेक इवन पॉइंट है इस पॉइंट के राइट में अगर हम जाएंगे तो सेविंग क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी। इसलिए क्योंकि इनकम इज मोर देन दी कंजप्शन, इनकम क्या है आपकी, कंजप्शन से ज्यादा है। इस कंडीशन पे आपका क्या होगा, सेविंग पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, टाइप्स ऑफ द सेविंग फंक्शन और द प्रोपेंसिटी टू सेव। टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे हम लोग टाइप्स पढ़े थे ना कंजप्शन फंक्शन का, एपीसी और एमपीसी। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। वही सेम चीज है, बट जहां पे हम लोग सी ले रहे थे एपीसी और एमपीसी में, यहाँ पे बस हम लोग एस लेंगे, सेविंग लेंगे। Okay, next topic is types of saving function. Types of saving function और propensity to save, कि कितना कोई किसी की इंटेंसिटी है, टेंडेंसी है सेव करने की। ठीक, APS, MPS. Okay, so there are two aspects or types of the saving function. Two aspect और types हैं saving function के। First है आपका APS, average propensity to save। इसका क्या है, marginal propensity to save। ठीक, so there are two aspects or types of the saving function or the propensity to save. First one is average propensity to save, next one is marginal propensity to save। अब देखिए एपीएस क्या होता है, एपीएस मीन्स आर्मी पब्लिक स्कूल नहीं होता है। एपीएस आपका क्या होता है, एपीएस इट इज द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल सेविंग टू दी करस्पॉन्डिंग टोटल इनकम, कि किसी भी इकोनॉमी में कितनी टोटल सेविंग हो रही है टू दी इनकम, कि जितनी इनकम गिवन है टोटल इनकम में, इकोनॉमी में, पूरी इकोनॉमी में कितनी सेविंग हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एपीएस बोलते हैं। सो इट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सेविंग विच इज करस्पॉन्डिंग टू द टोटल लेवल ऑफ इनकम। तो APS इक्वल टू S अपॉन Y। ठीक, APC हम लोग ने क्या पढ़ा था, C अपॉन Y, बस कुछ डिफरेंस नहीं है। वहां पे हम कंजप्शन की बात कर रहे थे कि हम कितना, जब लेवल ऑफ इनकम दी है तो हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे हम सेविंग की बात कर रहे हैं कि सेविंग हम कितना करेंगे। ठीक है, सो APS इक्वल टू S अपॉन Y, कि टोटल सेविंग कितनी हो रही है जब टोटल आपकी इनकम गिवन है। नेक्स्ट है आपका एमपीएस। एमपीएस क्या होता है, एमपीएस होता है आपका, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू द चेंज इन इनकम। सेम है एमपीएस, कि जब आपकी इनकम में चेंज हुआ है तो सेविंग में कितना चेंज हुआ है। जैसे हम लोग एमपीसी में कंजप्शन पढ़ रहे थे कि आपकी इनकम में चेंज हुआ है तो आप कितना कंजप्शन करने लगे। सेम चीज एमपीएस में है कि जब आपकी सेविंग, जब आपकी इनकम इंक्रीज हुई है, इनकम में चेंज हुआ है, अगर 50 से 75 हुआ है तो आप सेविंग में कितना चेंज हुआ है, यही होता है आपका एमपीएस। ठीक है,
तो टाइप्स ऑफ सेविंग फंक्शन में दो होते हैं, एपीएस और एमपीएस। एपीएस क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सेविंग करस्पॉन्डिंग टू द टोटल लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। एमपीएस होता है इट इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन सेविंग टू द चेंज इन इनकम इन एन इकोनॉमी। तो ये हो गया आपका एपीएस एंड एमपीएस। Okay, now next that we are going to explain the average propensity to save. अब हम लोग APS पढ़ते हैं कि APS को diagrammatic explanation करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा APS क्या होता है? It is the ratio of the total saving to the corresponding level of income in an economy. So S upon Y, ठीक है? ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा। एक ही चीज़ कंटिन्यूसली चल रही है। तो फिर assumption सेम हम लोग ले लेंगे, C इक्वल टू 50 प्लस 0.5y। ये आपको assumption लेना बहुत ही मैंडेटरी है जब भी आप कोई भी टेबुलर फॉर्म बनाने जा रहे हो, कोई भी शेड्यूल बनाने जा रहे हो, ठीक। सो y सेम, C सेम, S सेम ही है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? APS कैलकुलेट करना। APS कैसे कैलकुलेट होगा? S अपॉन y। S क्या है यहाँ पे? -50, y क्या है? 0। सो फर्स्ट वन इज इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्या है आपका? -25 अपॉन 50, 0.5, 0 अपॉन 100, 0, 50 अपॉन 200, 0.25, 100 अपॉन 300, 0.33, 150 अपॉन 400, 0.37, 200 अपॉन 500, 0.4, ठीक। यही सेम चीज़ है। S अपॉन वाई आप कैलकुलेट कर सकते हो, इतने दिन से प्रैक्टिस हो रही है। तो S अपॉन वाई आप क्या कर लोगे? S अपॉन वाई कैलकुलेट कर लोगे। नेक्स्ट अब हमारा क्या होता है? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है। तो हम लोग सेम वही इनकम क्या लेंगे? एक्स एक्सिस पे लेंगे, वाई एक्सिस पे क्या लेंगे? हम लोग सेविंग्स लेंगे। और ये जो वैल्यू है इनकम की और सेविंग की, वो वैल्यू प्लॉट कर देंगे। हमारा डायग्राम बन गया। ये जो लाइन है बन जाएगा ना आप लोग से, अब तो बन जाना चाहिए। -50, -25, 0, 50, 100, 150, 200। ये क्या है कि ज़्यादा फ्लैटर होता चला जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे डायग्राम में देख लीजिए, मे बी मैं ऐसी रफली बनाई हूँ तो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा होगा, बट ये मैक्सिमम सेविंग आपकी 200 है, तो ये यहीं तक ही आएगा। ये और स्टीपर हो सकता है, ये और स्टीपर। ये और स्टीपर आपका हो जाएगा, ठीक है। अरे सॉरी, फ्लैटर हो जाएगा S। और ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे शो कर दो जो भी हैं, ठीक है। अब क्या है कि हम लोग APS कैसे निकालते हैं? APS इज S अपॉन वाई। अब एट पॉइंट C पे देखिए, C पे कोई भी पॉइंट आप चेक कर सकते हो। तो C पे अभी आप C पॉइंट पे देखिए S अपॉन वाई। तो यहाँ पे हम कितना ले रहे हैं? S कितना है आपका? सेविंग इज 50, y आपका क्या है? 200। सो 50 अपॉन 20, 0.25। तो APS क्या बता रहा है? ये आपका स्लोप बता रहा है सेविंग फंक्शन का कि ये स्लोप कैसा होगा। जो वो स्लोप ऐसा होता जा रहा था, वो क्या था? वो स्लोप ही बता रहा था ना। MPC और APC और MPC की वजह से वो स्लोप बता रहा था। अब APS भी क्या है? ये सेविंग फंक्शन का आपका स्लोप बताएगा कि कर्व कैसा होगा। ये ज़्यादा ही एक्स एक्सिस के पास आता जाएगा, ये ज़्यादा ही फ्लैटर होता जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। आप ये ड्रॉ कर लोगे, पॉइंट शो कर दोगे, क्योंकि जब आप ये देख रहे हो, जब इनकम 0 है तो आपकी सेविंग क्या हो रही है? -50 हो रही है, क्योंकि आप डिस सेविंग कर रहे हो सारा। फिर आपकी जब इनकम क्या हो गई है? 0, इनकम 100 हो गई है, आपकी सेविंग 0 हो गई है। क्यों? क्योंकि आप पूरा ही कंज्यूम कर ले रहे हो। उसके बाद क्या हो रहा है? जब आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, अब सेविंग क्या हो रही है? आपकी पॉजिटिवली इंक्रीज हो रही है, 50, 100, 150, 200। क्यों? क्योंकि अब हम लोग कुछ पार्ट है जो अपनी इनकम का उसको सेव भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप इसको देखो, इसका ऑब्जर्वेशन है कि जब आपका APS एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज नेगेटिव, जब आपका APC क्या है? नेगेटिव है, विच मीन्स कंजप्शन इज मोर देन दी इनकम। वही तो हम लोग सेम चीज पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ पे क्या है? क्योंकि कंजप्शन क्या है? वो आपका इनकम से ज्यादा है, तो आप कुछ सेव कर नहीं रहे हो। जब आप कुछ सेव कर नहीं रहे हो, डिस सेविंग कर रहे हो, तो आपका APS भी क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है APS इज 0। APS आपका क्या है? 0 है। क्यों? क्योंकि आप इनकम क्या हो रही है? इनकम इज 100।
इनकम आपकी 100 है, आप पूरा ही क्या कर ले रहे हो, कंज्यूम कर ले रहे हो, तो आपकी सेविंग भी 0 हो जा रही है। जब सेविंग 0 हो जा रही है तो प्रोपेंसिटी टू सेव, जो आपकी टेंडेंसी है सेव करने की, वो भी 0 हो जाएगी। एज इनकम इंक्रीजेज, जैसे ही इनकम क्या होगी वो इंक्रीज हो रही है, एपीएस ऑल्सो इंक्रीजेज। अब देखिए जैसे इनकम 100 के बाद 200, 300, 400, 500 इंक्रीज हो रही है, तो आपका सेविंग भी पॉजिटिव हो रहा है, 50, 100, 150, 200, तो इसलिए आपका एपीएस भी क्या होगा, वो पॉजिटिवली होता चला जाएगा। 0.25, 0.33, 0.37, 0.4। अब यहाँ क्या एपीएस क्या है, वो इंक्रीज ही होता चला जाएगा, क्योंकि अब जो पीपल हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी इनकम इंक्रीज हो रही है, तो कुछ पार्ट अपनी इनकम का वो सेव भी कर रहे हैं, इसलिए क्या है आपका जो एपीएस है वो कंटिन्यूअसली अब क्या होता जाएगा, वो देखिए एपीएस इज टोटली डिपेंड की कितनी सेविंग है, और सेविंग किस पे डिपेंड है कि कितनी इनकम है। तो पहली कंडीशन पे एपीएस क्या होगा, वो निगेटिव होगा। एपीएस आपका निगेटिव है क्योंकि आपका कंजप्शन इनकम से ज्यादा है, तो आपको सेविंग नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट पे एपीएस आपका 0 है, एपीएस 0 है तो क्यों, क्योंकि आप जो जितनी भी आपकी इनकम है आप पूरा ही कंज्यूम कर ले रहे हो, सेविंग कुछ नहीं कर पा रहे हो। थर्ड पे जब इनकम आपकी इंक्रीज हो रही है तो एपीएस भी इंक्रीज होने लगेगा, क्योंकि अब कुछ पार्ट हम अपनी इनकम का सेव भी कर रहे हैं। जब हम सेविंग पॉजिटिव हो रही है तो एपीएस भी इंक्रीज होता जा रहा है। देखिए एपीएस कैसे, 0 के बाद 0.25, 0.3, 0.33 के बाद 0.37, 0.4, अब एपीएस क्या है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, ये इसका ऑब्जर्वेशन है, आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि एग्जाम में आप वाई लिख दो, आपको इनकम लिखना पड़ेगा। वो तो मैं व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा शॉर्ट में लिखती हूँ, बट आपको क्या है इनकम लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है इसका प्रॉपर्टीज है और फीचर्स है एपीएस के। सो एपीएस कैन बी 0, एपीएस कैन बी 0। आपको याद है एपीसी को मैंने बोला था कि एपीसी कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि आपका कंजप्शन कभी भी 0 नहीं हो सकता। बट एपीएस क्या है वो 0 हो सकता है। क्यों, क्योंकि आपकी सेविंग 0 हो सकती है। ठीक, सो एपीएस इज 0 व्हेन सेविंग्स आर 0। एपीएस 0 है जब सेविंग आपकी 0 है। नेक्स्ट है एपीएस कैन नेवर बी 1। एपीएस कभी भी 1 नहीं होगा। इट इज बिकॉज सेविंग कैन नेवर बी इक्वल टू इनकम, क्योंकि कभी भी आपकी सेविंग इनकम के इक्वल नहीं हो सकती। क्या आप कभी ये सोचिए, आपकी किसी मंथ में आपकी सैलरी आ रही है 50,000, आप सब कुछ सेव करोगे, आप क्या कंज्यूम करोगे फिर, है कि नहीं। इस कंडीशन पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी सेविंग कभी भी 1 नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग इनकम 1 लेके चल रहे हैं। जब इनकम 1 लेके चल रहे हैं तो सेविंग हम कुछ ना कुछ तो हर मंथ कंज्यूम करेंगे ना, हम पूरा तो सेविंग नहीं कर सकते ना। आप क्या सैलरी आ रही है आपके फादर की, क्या आप लोग पूरा 1 मंथ कुछ कंज्यूम नहीं कर रहे हो, सब सेव कर ले रहे हो, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी सेविंग क्या है सेविंग कभी भी 1 नहीं हो सकती है। और आपका एपीएस भी कभी एपीएस कभी भी 1 नहीं हो सकता है, और सेविंग आपका 0 हो सकता है, क्योंकि मे भी आपके पास कम सैलरी आई हो, 10,000 आपके यहाँ इनकम आई हो, तो आप पूरा ही कंज्यूम कर ले रहे हो, आपने कुछ सेविंग नहीं किया। बट सेविंग कभी भी 1 नहीं हो सकती है, बिकॉज एज अ पीपल स्पेंड अ पार्ट ऑफ इनकम ऑन कंजप्शन। क्योंकि पीपल कभी भी अपना कंजप्शन बंद नहीं कर सकते, भले उनकी जब इनकम 0 है तब तो वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो जब इनकम आ रही तो वो क्यों, कंजप्शन तो के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता, इसलिए कभी भी सेविंग आपकी 1 नहीं हो सकती। सो एपीएस कैन नेवर बी मोर देन 1। अब एक और लाइन कह रहा है कि एपीएस कभी भी आपका मोर देन 1 भी नहीं हो सकता, एपीएस 1 भी नहीं हो सकता और एपीएस से ज्यादा भी नहीं हो सकता। इट इज बिकॉज सेविंग कैन नॉट बी मोर देन इनकम, क्योंकि सेविंग आपकी इनकम आ रही है मंथ में 50,000 और आप सेविंग कर रहे हो 60,000, ये पॉसिबल है, कभी नहीं पॉसिबल। ठीक है, तो सेविंग कभी भी आपकी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती, बट एपीएस कैन बी निगेटिव, एपीएस आपका निगेटिव हो सकता है। ये देखिए, क्योंकि जब आपका कंजप्शन इनकम से ज्यादा हो जाएगा तब आपकी सेविंग निगेटिव में हो जाएगी, सिंपल है। नेक्स्ट है एपीएस राइजेस विथ राइज इन इनकम। देखिए एपीएस भी हम कैसे निकालते हैं, सेविंग से ही निकालते हैं। अब एपीएस क्या है, जैसे ही इनकम राइज हो रही है तो आपका सेविंग भी राइज होता जा रहा है। सेम आपका एपीएस के भी साथ है कि एपीएस भी क्या है, एपीएस टोटली डिपेंड है सेविंग पे, तो सेविंग इंक्रीज हो रही है तो एपीएस भी इंक्रीज होता चला जा रहा है। ठीक है, so what we have discussed in today's class, we have discussed about the first of all we have started the saving function.
So what is this saving function? Types of the saving function, in which we have discussed the APS. Okay, we have properly discussed the APS along with their tabular presentation and the diagrammatic presentation. So in next class we will study about the APS, sorry, we have already discussed the APS. Now we are going in the next class we will discuss about the MPS, marginal propensity to save. And next topic we will discuss about the derivation of saving function. कि जब आपके पास डेरिवेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आपके पास सेविंग फंक्शन होगा, सेविंग कब होगा, आप कंजप्शन फंक्शन कैसे निकालोगे, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. जब आपके पास कंजप्शन फंक्शन होगा तो आप सेविंग कर कैसे फाइंड आउट कर सकते हो. तो ये टॉपिक, ये दोनों टॉपिक एमपीएस और डेरिवेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है. सो इट्स ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास. थैंक यू.